सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां नवजोत कौर। ते लगातार कोरोना दी रफ्तार भारत दे विच वधी होई है, दुनिया दे विच वधी होई है और लॉकडाउन पार्ट 4 भी छेती खत्म होण जा रहा है। पर उस तो पहला तुहानूं दस दिंदे आ बुलेटिन दी सब तो पहली खबर, जिस दे विच कांग्रेस दी स्पीक अप इंडिया मुहिम ਦੀ शुरुआत जो कांग्रेस वालों की गई है, उस दे विच मजदूरां नूं लैके कांग्रेस ने केंद्र सरकार नूं घेरिया है। सीएम कैप्टन ने भी हुण कीती है पीएम नूं अपील और केंद्र मजदूरां लई जरूरी कदम चुके। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक गल्लां जिहड़ियां प्रधानमंत्री मोदी नूं अपील की गई है और उन्होंने कहा है कि मजदूरां दी सार लई जावे, उन्हां लई जरूरी कदम चुके जाण, मजदूरां दे खातिਆਂ दे विच पैसे पाए जाण और मनरेगा तहत मजदूरां नूं काम दिता जावे। इस दे नाल ही पंजाब दे विच मजदूरां नूं कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने अपना भी पक्ष रखिया कि असीं मजदूरां दा पूरा ख्याल रखिया है। घर वापसी लई पंजाब सरकार ने सार्थक जिहड़े यतन ने वो भी कीते ने। पंजाब दे लई ट्रेनां भी जिहड़ियां ने वो वधाईयां गईयां ने ताकि जिहड़े मजदूर ने वो अपने घरां नूं परत सकण और उन्हां नूं कोई दिक्कत ना आवे। इस दे नाल ही ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਵੀਰ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ BPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ। 10,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹ 200 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਔਰ 3-4 ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੂਗਾ, 4-5 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ खुद मनी और डीसी ने मामले की जांच के भी आदेश दे दिते ने। तुहानू सब तो वड्डी खबर इस वेले दिखा रहा हिमाचल दे हमीरपुर, यानी कि हमीरपुर इस वेले हिमाचल का सब तो वड्डा गढ़ बनया होया है जिथे कि कोरोना वायरस के सब तो वध केस ने और उत्थे यह जी लापरवाही जिहड़ी सामने आई है वाकई अपने आप दे विच कई तरह के सवाल खड़े करदी है। 15 कोरोना मरीज जिन्होंने पहला नेगेटिव दस दिता जाता है उन्होंने घर भेज दिता जाता है और उस तो बाद फिर तो उन्होंने देर रात पॉजिटिव दस के उन्होंने वापस बुला लिया जाता है। और खुद तुहानू दस दिए कि हमीरपुर के डीसी ने अपनी इस लापरवाही नूं, इस कोताही नूं मन्निया है और डीसी ने इस मामले दे विच हुण जांच दे अगले आदेश जिहड़े ने दे दिते गए ने। ते हुण तुसीं खुद सोचो कि ओ जिहड़े मरीज वापस भेजे गए ओ किन्ने लोकां दे नाल संपर्क दे विच आए होणगे, अपने परिवारक मैंबरां नाल संपर्क विच आए होणगे और जिहड़े कि अपने हॉस्पिटल्स दे जिहड़े स्टाफ हुंदा है उन्हां दे संपर्क विच आए होणे ने और उस तो बाद किस तरह उन्हां नूं आराम दे नाल घर भेज दित्ता जांदा है और फिर जदों पॉजिटिव पाई जाती है रिपोर्ट, यानी कि किते ना किते एक गलती हुई है, जांच दे विच गलती हुई है। जाहिर जी गल है किद्दां पहला वो नेगेटिव आ जाते हैं फिर वो पॉजिटिव आ जाते हैं और फिर कई लोकां लई वो जान दा खतरा बन जाते हैं। तुहानू दस दिए कि लगातार हिमाचल दे विच भी कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, लगातार आंकड़े वधदे जांदे ने और हमीरपुर जिहड़ा है वो कोरोना वायरस दा हब बनया होया है जिथे कि लापरवाही जिहड़ी है वड्डी लापरवाही वेखण नूं मिल रही है। साडे नाल साडे सहयोगी हमीरपुर तो जसवीर कुमार नाल जुड़ चुके ने। जसवीर, क्या कुछ मामला है पूरा, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि हमीरपुर में पिछले कल देर रात करीब 10 बजे जो 15 लोग पॉजिटिव आए थे उनको फिलहाल 3 घंटे पहले ही अपने घर रिलीज कर दिया था, भेज दिया था प्रशासन के द्वारा। इसमें जो प्रशासन की एक बड़ी चूक सामने आई है जिसमें कि जो पहले नेगेटिव दिखाए गए 15, उसके 2 घंटे बाद उनकी रिपोर्ट आती है सेकेंडरी, उसमें ये लोग 15 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसमें उनको घरों से दोबारा जब 11 से 12 बजे के बीच में दोबारा से इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किया गया। आपको ये जारी जानकारी दें कि ये कुल 43 लोग थे जो कि 2-3 जगहों पे रह रहे थे और वहां पे उनको इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन जो 15 लोगों की रिपोर्ट फिलहाल अभी इनकी रिपोर्ट पहुंची वो पॉजिटिव आई थी। उसके बाद जो प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा उनको रिलीज कर दिया था। तो ऐसे में अब जो डीसी हमीरपुर ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने अपनी चूक को माना है और उनका एक साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब आज से ये भी उन्होंने कहा है कि जो भी रिपोर्ट पॉजिटिव जो मरीजों का आएगी उसको एसडीएम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही क्वारंटीन लोगों को अपने घर भेजा जाएगा। जी जसवीर, इसमें जो 43 लोग आप कह रहे हैं जिनको पहले से क्वारंटीन किया गया था, क्या ये लोग इंटर स्टेट ट्रैवल करके आए हैं? किस तरह ये कोरोना जो पेशेंट पहले से हैं उनके संपर्क में किस तरह से आए? जी बिल्कुल, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सभी लोग मुंबई से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और ये सभी लोग मुंबई को 18 मई को हमीरपुर पहुंचे थे और उसी दिन से ये वहां पे इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन में रह रहे थे। लेकिन इसमें जो बड़ी चूक हुई, जो 15 लोग इन्होंने 3 घंटे के लिए छोड़ दी थे, अपने घर भेज दी थे, वो अपने घरों में लोगों से संपर्क में भी आए हैं, 2-3 घंटे अपने घरों में रहे। तो अब प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि जो परिजनों से मिले हैं लोग या किसी और लोगों से बातचीत की है तो इन सभी की अब से रीसैंपलिंग की जा रही है और जो इलाका है उसे बिल्कुल कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका जसवीर इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए। ते अपने आप दे विच बेहद गंभीर मसला इसलिए भी है क्योंकि हजे 18 मई नूं मुंबई तो वापस आउंदे और 28 मई तो एक दिन पहला ही उन्हां नूं वापस भेज दिता जाता है उन्हां दी रिपोर्ट के आधार के उत्ते। हालांकि ये सारे पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी कि तुहानू दस दिए कि ज्यादातर जिहड़े सिम्पटम्स कोरोना वायरस दे आंदे 15 दिन का एक समा पूरा तय किया जाता है। हालांकि एडवाइजरी जिहड़ी आई है उस तो बाद इस समय नूं घटा दिता गया है, पर हुण जिहड़ा ये मसला आया है यानी कि 9 दिनां दे अंदर उन्होंने जिस तरह उन्होंने नेगेटिव मन के वापस भेज दिता गया और हुण जदों उन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ते कई लोकां दी जान ते खतरा है क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप दे विच एक बहुत ही नामुराद बीमारी है जो कि कुछ ही देर दे विच कई लोकां दे विच काफी एरिया कवर कर जाती है। और हुण प्रशासन अगे की कड़ा रुख इख्तियार करदा है अजिहा लोकां लई जो इहो जी लापरवाही दा हिस्सा बने ने, ये वेखण वाली गल होवेगी। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 15 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होंगे। यहाँ कम्युनिकेशन गैप रहा, किस तरह से एक जो लैब हैं हमारे सैंपल्स IGMC भी जाते हैं, IHBT भी जाते हैं, नेटचौक भी जाते हैं, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी है और वो किस तरह से वहाँ रिपोर्टिंग का फॉर्मेट होता है, तो जो गैप है उसको हम डेफिनेटली पता करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हुई है उसके बाद में किन किन से लोग मिले, क्योंकि रात को शाम को पहुँचे और 11-12 बजे रात सुबह 2-3 बजे तक हमने उनको DCC में शिफ्ट किया है और उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनका किस तरीके से है, उनके कौन कौन घर से मिले। वैसे तो हमारा ऑर्डर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन का था, जिसमें करके कि आपको घर जाके यहाँ से आइसोलेशन में रहना है 14 डेज। तो उसकी हमारी टीम वर्क कर रही है। मैंने सभी SDMs को बोला है कि आप, क्योंकि डिफरेंट विलेजेस थे, किसी विलेज तो वहाँ की जो घर है उस घर में पर्टिकुलर फैमिली से मिलें और जो नेक्स्ट 8-10 दिन के लिए एक आइसोलेशन में रखें खुद को, और उसके बाद उनके सैंपल उठाए जाएंगे, उनको रूल आउट किया जाएगा और उस पर पूरी हम एहतियात बरत रहे हैं। डेफिनेटली जहाँ चूक हुई है उसको हम फिल करेंगे और जो रिपोर्टिंग का रिलीजन का फॉर्मेट है हम वैसे करते यहीं से हैं और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से हम लोग SDMs को ऑर्डर किया करेंगे जितने भी सेंटर्स के आते हैं कि रिपोर्ट आई है ना, इट हैज़ बीन वेरीफाइड बाय दी